السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج اس ناول زندگی ہے تیرے نال جس کو تحریر کیا ہے رمشا نے، آج اس کی قسط نمبر 10 ہم ریڈ کریں گے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اس قسط کی جانب۔ چودھرائن جی ضد مت کریں، پلیز کچھ کھا لے، روپ نے لیزا سے کہا جو صبح سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ نہ تو اس نے کل رات سے کچھ کھایا تھا نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ پلیز ایک گلاس دودھ پی لے، روپ نے دودھ کا گلاس لیزا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن لیزا نے ہاتھ مار کر اس گلاس کو پھینک دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اعظم نے جب زمین پر ٹوٹا ہوا گلاس اور بکھرا دودھ دیکھا تو گہرا سانس لے کر اس کی جانب آیا۔ آپ جائیں استادنی جی، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ روح اعظم کا حکم مانتی دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اعظم لیزا کے پاس آیا، اس کے سامنے پڑے پراٹھے کا نوالا بنا کر لیزا کے سامنے کیا، لیکن لیزا اپنا منہ موڑ گئی۔ ناراضگی مجھ سے کھانے سے تو نہیں، کم سے کم کچھ کھا کر ناراض ہونے کی طاقت تو خود میں پیدا کرو، اعظم نے بہت زیادہ نرمی سے کہا، لیکن لیزا نے اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اعظم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو نظر اپنی انگلی کے نشان پہ پڑی جو ابھی بھی وہاں قائم تھا۔ اعظم کا دل چاہا کیا اپنا وہ ہاتھ توڑ دے جس نے اس کی ولایتی چیزوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جانتا ہوں کہ میرے عمل نے اس نازک سے چہرے سے زیادہ اس دل کو چھلنی کیا، لیکن دیکھنا اس دل کو پھر سے جوڑ کر رہوں گا۔ اعظم نے اس کی گال کو نرمی سے چھونا چاہا تو لیزا نے فوراً اپنا چہرہ اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ غصے میں تم میری دیسی شیرنی بنو گی جو میرے بال نوچ دے گی، لیکن تمہاری یہ خاموشی تم پر بالکل نہیں جچ رہی۔ اعظم کی نظر اس کے ہاتھوں پہ بنے ڈیزائنر چوڑیوں پر گیا تو اعظم نے نرمی سے آن چوڑیوں کو چھوا۔ اس کے ایسے کرتے ہی لیزا اسے دھوری اور چوڑیاں اپنی کلائی سے نکال کر فرش پر پھینک توڑ ڈالی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں پر بنے ڈیزائن غصے سے مٹھا رہی تھی۔ اعظم گہرا سانس لے کر اس کے قریب ہوا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ بس کر دو نا یہ غصہ میری جانو، بس ذرا اپنی انگریزی بول کر سر کھا لو میرا، اعظم نے نرمی سے کہا، لیکن کچھ کہنا تو دور لیزا نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر اس کی تھوڑی کو چھوڑا۔ اگر ضدی ہو تو میں بھی ضد ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اس کی تھوڑی چھوڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے اپنی چیزوں کو کیسے منانا تھا۔ یہ آپ کے لیے چودھری جی نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں، روپ نے ایک ٹپا لیزا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن لیزا تو ایسی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ پلیز چودھرائن جی اب غصہ تھوک بھی دینا، مانا ان سے غلطی ہے، لیکن انہوں نے آپ سے معافی بھی تو مانگی ہے نا۔ روپ نے وہ ڈبہ اس کے پاس سے رکھ کر اسے سمجھایا، اور ابھی بھی وہ آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، روپ لاچارگی سے کہہ رہی تھی، اور لیزا مسلسل اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، آپ کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن کسی کو موقع نہ دینا زیادتی ہے۔ اس بات پہ لیزا نے روپ کی جانب دیکھا تو روپ نے شکر کا سانس لیا۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے چودھرائن جی، آپ سے بھی ہوئی ہوگی، کبھی سوچا کہ آپ کی غلطی پہ کوئی آپ کو معافی مانگنے کے باوجود بھی معاف نہ کرتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ روپ نے اپنا ہاتھ لیزا کے کندھے پر رکھا، بس ایک بار خود کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اتنا کہہ کر روح وہاں سے چلی گئی اور لیزا کتنی دیر اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی، پھر کافی سوچنے کے بعد وہ اٹھی اور اس ڈبے کو پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی جہاں اعظم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیزا کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ دیکھتا رہ گیا۔ آج اس نے اپنی چوزی کو کالے رنگ کا جوڑا دیا تھا جس میں اس کی گوری رنگم مزید نکھر کر اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ لیزا خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن لیزا فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ اعظم کے اشارہ کرنے پر ملازمہ نے ایک کالی چادر لیزا کو اڑا دی۔ چلو، اعظم نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اپنی گاڑی میں لے گیا۔ رات کے سائے آسمان پر لہرا رہے تھے اور لیزا اس بس خاموشی سے اسی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ منزل پر پہنچ کر کار رکنے پر لیزا اعظم سے پہلے گاڑی سے نکلی اور اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی میلہ تھا جہاں وہ کل آئی تھی، لیکن کل کے ہجوم کے برعکس آج میلے پر دکانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تم آزادی سے یہ میلہ گھومنا چاہتی تھی نا، بغیر کسی روک ٹوک کے؟ لو میری ملکہ، یہ سب تمہاری ملکیت ہے، جو دل میں کرو تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اعظم نے اپنی بات کہہ کے غلام کو اشارہ کیا تو اس نے اعظم کی بات انگلش میں دہرا دی۔ آج اس جگہ پہ بس میری ولایتی چوزی کا راج ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ غلام کی بات بتانے پر لیزا نے ایک نظر اس میلے کو دیکھا، پھر خاموشی سے چلنے لگی۔ اعظم بھی اپنی کمر پر ہاتھ باندھتا اس کی پیش قدمی پہ چلنے لگا۔ ہر اسٹال پر موجود دکاندار انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے التجا کر رہے ایک بار گاؤں کے چودھران اس کی دکان پر آ جائیں۔ آخرکار لیزا آسمانی جھیلے کے پاس رکی اور کچھ سوچ کر اس کی ایک ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پسند اعظم کو اس کے لیے پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے سیٹ پر بیٹھ گئی اور تیکھی نظر سے جھولے کے مالک کو دیکھا۔ آہستہ چلانا میری بیوی کے چہرے پر خوف کی ایک بھی شکن تمہارے لیے اچھی ثابت نہیں ہو سکی۔ اعظم کے حکم پر جھولے والے نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا جھولا شروع کر دیا۔ لیزا بس خاموشی سے بیٹھی جھولے سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی اور اعظم میں سے تیسرے چوتھے چکر کے بعد جب ان کی ڈولی سب سے اوپر پہنچی تو جھولا اچانک ہی رک گیا اور پورے میلے کی لائٹ چلی گئی۔ لیزا نے گھبرا کر اعظم کی جانب دیکھا۔ گھبراؤ مت، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اعظم نے نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے چوزی ناراضگی کی پکی ہو تو تم کافی شاید اپنے پیروں پہ گرا کر ہی مناؤ گی، کیسی بات ہے نا، تم چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں ایک ہٹے کٹے مرد کو اپنے پیروں پہ جھکانے کی طاقت رکھتی ہو اور ہم
हम मर्द खुद को ताकतवर समझते हैं। अज़म ने हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन लीजा तो ऐसे ही वहाँ देख रही थी जैसे वहाँ तन्हा हो। अज़म ने गहरा सांस लेकर आंखें मूंदी और डोली का हल्का हल्का सा झिलाने लगा। रब द ही दब कोई ना होना कर कुछ और जादू टोना। अज़म ने इस जिस्म जान को देखते हुए गाया और इसे गाना का ख़त्म करते ही मेले की लाइट आ गई। लीज़ा ने इस रोशनी की जानिब देखा तो आंखें हैरत से फैल गई। इतनी ऊंचाई से इसकी नज़र पूरे मेले पर जा रही थी जैसे दुकानों को सेट किया गया था। सबकी लाइटें मिलकर एक बड़ा सा सॉरी लिख रही थी। लीज़ा ने हैरत से अज़म को देखा तो अज़म ने भी अपने हाथों अपने कानों पर रख लिए। सॉरी। अज़म के मुँह से वो अल्फाज इस काविश को देखकर लीज़ा को दिल किया कि अपना सारा गुस्सा भूल जाए। लेकिन नहीं, वो इस शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी कि वो कोई गुलाम नहीं जिस पर सब जब दिल किया क्या हाथ उठाया और वो उसकी बीवी थी। इसे दी जाने वाली इज्जत की हकदार थी वो। लीज़ा ने अपना मुंह फेर लिया तो अज़म ने गहरा सांस लेकर झूले वाले शख्स को इशारा किया तो झूला चलने लगा और इसने इन दोनों को नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही लीज़ा ज्वेलरी की दुकान पर गई जहाँ अज़म अभी भी इसके पीछे था। लीज़ा ने एक पेंडेंट हाथ में पकड़ कर देखा और इसे वापस रखकर मुड़ने लगी तो दुकान पर बैठी औरत ने इसे कागज़ दिया। लीज़ा ने हैरत से इस कागज़ को खोल कर देखा तो ऊपर सॉरी लिखा देखकर इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का और फिर हर चीज़ को नज़रअंदाज करती ही आगे बढ़ गई तो इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो हाथ पर तोता बैठा है वहाँ बैठा था। लीज़ा इसके पास गई और नरमी से तोते को छुआ। सॉरी मेरी चूजी, सॉरी सॉरी। तोते के बोलने पर लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई। इसने गुस्से से तोते के मालिक को घूरा जो घबरा कर अज़म की जानिब देख रहा था। लीज़ा के गुस्से से वहाँ जाने पर अज़म मुस्कुरा कर उसके पीछे आया तो इसकी नज़र लीज़ा पे पड़ी जो एक दुकान के बाहर खड़ी हसरत भरी निगाह से इस दुकान में झाँक रही थी। अज़म ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो नज़र एक बड़े से टेडी बियर पे पड़ी। कितने का है ये? अज़म ने दुकानदार से पूछा। ये बेचने के लिए नहीं है चौधरी जी, आपको सही निशाना लगाकर इनाम में जीतना होगा। दुकानदार की बात अज़म के माथे पर बला। उसने जेब से पैसे निकाल कर दुकानदार को दिए। दुकानदार के एक तीर पकड़ने पर अज़म ने अपने सामने मौजूद 20-30 गुब्बारों को देखा। फिर एक गुब्बारे का निशाना लेकर तीर फेंका लेकिन वहाँ से चॉकलेट इनाम में निकलता देखा। अज़म के माथे पर बल आए। वो हर बार कोशिश करता रहा और तकरीबन 15वीं कोशिश के बाद एक गुब्बारे के पीछे से टेडी निकला तो दुकानदार ने शुक्र का सांस लिया कि टेडी अज़म को पकड़ा दिया। अज़म ने टेडी लीज़ा की जानिब बढ़ा तो जो हैरत से देख रही थी। लीज़ा ने जैसे ही खुद से आधे टेडी को बाहों में लिया तो टेडी में से सॉरी की आवाज़ लीज़ा के कानों में गूंजी। इस सब को अज़म के खुद को मनाने की साजिश समझते हुए लीज़ा के माथे पर बल आया लेकिन फिर एक मुस्कुराहट खुद ब खुद होठों पर आई जिसे छुपाने के लिए इसने अपना चेहरा टेडी की नरम गर्दन पे छुपा लिया। इट्स ओके। लीज़ा की हल्की सी सरगोशी पर अज़म को ऐसा लगा जैसे पूरा जहान मिल गया हो। अज़म ने 2 उंगलियां होठों पर रखकर सीटी बजाई तो लीज़ा ने आंखें फैला इसे देखा। ओ मुबारक मेरे भाइयों, मेहनत कामयाब हो गई, मान गई तुम सबकी चौधरान। अज़म की बात पर वहाँ मौजूद हर आदमी तालियां बजाने लगा और लीज़ा यहाँ वहाँ से हैरत से देखती अज़म को देखने लगी। तुमने ये सिर्फ मुझे बनाने के लिए किया है? लीज़ा ने हैरत की इंतहा से पूछा। इसे आज तक अपना आप इस कदर ख़ास नहीं लगा था। ओए गुलामे आजा, अब तेरी यहाँ तेरी भाभी फिर से शुरू हो गई है ये नगोरी अंग्रेज़ी। अज़म के बुलाने पर गुलाम फ़ौरन वहाँ आया और लीज़ा से पूछने लगा कि इसने अज़म को क्या कहा। लीज़ा के सवाल पर दोहराने पर गुलाम ने मुस्कुराते हुए अज़म को इसका सवाल बताया लेकिन अज़म इस सवाल का जवाब देने के बजाय इसके पास आया और नरमी से गाल चलाया। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तो ज़मीन आसमान एक कर दे ये चौधरी। गुलाम की ये बात इंग्लिश में दोहराने पर लीज़ा के रुखसार गुलाबी हो गए। इसने अपना सर झुका लिया। इसे समझ नहीं आता कि अज़म को क्या जवाब दे। मुझे भूख लगी है, लीज़ा ने मुंह बनाकर कहा तो अज़म के साथ साथ गुलाम ने भी सुक्का सांस लिया क्योंकि वो पागल लड़की ने गुस्से में कल रात से कुछ नहीं खाया था। उसके भूख के होने की वजह से अज़म ने भी खाना खुद पर हराम कर रखा था। तो ठीक है आओ चूजी, तुम्हें बताऊँ खाना किसे कहते हैं। अज़म ने लीज़ा का हाथ पकड़ा और इसे स्टॉल पर लिया जहाँ एक आदमी तिक्के और सीख कबाब तैयार कर रहा था। कबाब और तिक्के सामने आने पर भूख की वजह से लीज़ा के मुंह में पानी आने लगा। वो जल्दी से एक बोटी पकड़कर अपने होठों पर तक ले गई लेकिन फिर एक ख्याल के तहत इसका हाथ होठों के पास ही रुक गया। इसने एक नज़र अज़म को देखा फिर वो बोटी अज़म के होठों के सामने कर दी। अज़म ने मुस्कुराते हुए उस बोटी को मुंह में लिया और सीख कबाब का टुकड़ा तोड़कर लीज़ा को खिला दिया। यम्मी मज़ेदार जायके पर लीज़ा ने आंखें मूंदकर कहा तो अज़म की आंखों में हरारत थी। यम्मी ये नहीं मेरी चूजी, तुम हो बस घर जाकर एक बार फिर इन गुलाबी लबों का जाम चखने दोगी तो अनायत होगी तुम्हारी। अज़म शिद्दत से कहते हुए उसे खाना खिला रहा था और लीज़ा अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी। ज़िद और जुनून की राह पर चलने वाले आज इश्क की महराज पर पहुंचे थे लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि एक दूसरे के लिए वो जीने की वजह बनते जा रहे थे। फरी बेगम की तबीयत अब ज़्यादा संभल चुकी थी। अभी कल ही वो अस्पताल से वापस आई थी और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी।
थी। अभी भी रात के खाने बाद उन्होंने सबको हॉल में ही रोक लिया था। क्या बात है फ़रीन, कोई ख़ास बात है जो तुम सबको यहाँ को रोका है? अम्मा बी के क्या पूछने पर फ़रीन बेगम ने खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। बहुत ज़्यादा ख़ास बात है अम्मा बी, पहले सोचा था कि कुछ अरसे के बाद आपको बताऊंगी, लेकिन मुझसे इंतज़ार नहीं, और अब तो आन और अशवान भी वापस आ गए, तो सोचा क्यों ना इस खुशी को आप सबसे बांट लूँ। फ़रीन बेगम ने खुशी से चहकते हुए अनाबिया को देखा, जो शर्माई शर्माई सबके दरमियान बैठी थी। फिर बता भी चुको फ़रहीन, अम्मा बी ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने सुल्तान और नबी की शादी अगले महीने करने का फैसला कर लिया और सुल्तान को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं। फ़रीन बेगम ने जितलाती नज़र से अम्मा बी को देखते हुए बताया, जबकि अम्मा बी तो हैरत से सुल्तान को देख रही थी, जो सर झुकाए वहाँ बैठा था। क्या सच में सुल्तान? अम्मा बी के सवाल पर सुल्तान करब से अपनी आंखें मेजता इस बात में सर ला गया। अम्मा बी ने इसके जवाब पे गहरा सांस लेकर फ़रीन बेगम को देखा। मुबारक हो फ़रीन, अल्लाह बच्चों को खुशियाँ मुबारक करे। फ़रीन बेगम के होठों पे फतेह मुस्कान है। उन्होंने अर्शमान को देखा। अर्शमान बेटा, तुम्हें सब इंतजाम बेहतरीन तरीके से करने हैं। मैं चाहती हूँ सुल्तान और नबिया को शादी इस गाँव की सबसे यादगार शादी हो। ऐसा ही होगा अम्मी। अर्शमान का जवाब इनकी खुशी बढ़ा गया। मुझे नींद आई है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सुल्तान ने उठते हुए कहा और हर किसी को नज़रअंदाज करता वहाँ से चला गया। कमरे में आकर इसकी चाहे बेबसी सब इस पर हावी हो गए। इसे खुद से नफरत हो रही थी। ये सब सिर्फ अपना कसूरवार लग रहा था। इसका दिल कर रहा था कि खुद को जान ले। सुल्तान ने गुस्से से कुर्सी को टांग मारकर फर्श पे पटक दिया और अपने बाल नोचते हुए कमरे के चक्कर काटने लगा। साईं जी का इसकी घबराई सी आवाज़ पे सुल्तान का ध्यान इसकी जानिब बढ़ गया, जो कमरे के दरवाजे में खड़ी घबराई सी इसे देख रही थी। मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो यहाँ आ गई। सब ठीक तो है? साईं जी का से सहम कर पूछा। इसकी मौजूदगी पे सुल्तान की हिम्मत जवाब दे गई। वो इसके पास और इसका हाथ पकड़कर इसके कमरे में खींचते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि कनीज़ कुछ समझती, सुल्तान ने इसे अपने सीने में बींचकर अपना चेहरा इसकी गर्दन पे छुपा चुका था। ससाई कनीज़ से घबरा कर इसे पुकारा, लेकिन जब अपनी गर्दन पर सुल्तान के आंसू महसूस हुए, घबराहट फ़िक्रमंदी में बदल गई। क्या हुआ साईं, आप क्यों रो रहे हैं? कनीज़ ने परेशानी से इसके मजबूत कंधों को थामते हुए पूछा, जबकि उसको अपने करीब महसूस करके सुल्तान आंसुओं को रवानी से बहने की इजाज़त दे चुका था। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? कनीज़ ने घबराते हुए पूछा। पहले ही जब इसे वो दोनों यहाँ आए थे, सुल्तान का इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना कनीज़ को बहुत परेशान कर रहा था, और अब ये सब वो पक्का कनीज़ से नाराज़ था। ये ख्याल आते ही कनीज़ खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। सुल्तान ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाल कर इसे बहुत मोहब्बत और हसरत से देखा। अब आप मत रोएं साईं जी, मैं मुझसे आपका रोना नहीं देखा जाता। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस आप मत रो। कनीज़ की अल्फाज सुल्तान का पछतावा और उसकी खुद से नफरत मज़ीद बढ़ा गए थे। मुझे माफ़ कर देना नूरी। कनीज़ ने हैरत से सुल्तान को देखा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे साईं जी? आपने तो कुछ भी नहीं किया। इसकी मासूमियत पर सुल्तान जब से अपनी आंखें मूंद गया। अगर तू अपनी माँ का दिल दुखाने पर खुदा से बख्शने वाला नहीं था, तो तू इतना मासूम दिल तोड़कर भी इसकी कोशिश कभी नहीं होने वाली थी। मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ जो मैंने किया, बल्कि इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं आप? कनीज़ ने हैरत से पूछा। तो सुल्तान अपनी आंखें मूंद गया। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा हक किसी और को देने जा रहा हूँ। एक वही होगी जिसे सुल्तान मलिक के नाम से दुनिया जानेगी, लेकिन चाह कर भी तुम्हें अपना नाम नहीं, अपनी पहचान नहीं दे सकूंगा। मैं तुम पे जुल्म की इंतहा करने जा रहा हूँ नूरी। सुल्तान चाह कर भी अल्फाज ज़बान पर नहीं लाया। वो अभी इतनी जल्दी अपनी नूरी को खोना नहीं चाहता था। बस मुझे माफ़ कर देना, और हो सके तो मुझसे इतनी नफ़रत मत करना कि मेरा चेहरा भी देखना गवारा मत करना। सुल्तान की बात पर कनीज़ के आंसू इसकी आंखों में ही अटक गए। इसने मुंह फैलाकर सुल्तान को देखा। कनीज़ मर तो सकती है, लेकिन आपसे नफरत नहीं कर सकती साईं। इसकी बेलौस मोहब्बत पर सुल्तान ने इसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन ये कनीज़ अपने सुल्तान से नफरत करेगी। सुल्तान इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले कि कनीज़ से कुछ पूछती, सुल्तान इसके होठों पर झुक गया और इसे अपनी बाहों में उठा लिया। सुल्तान की इस बेखुदी पर कनीज़ खुद ही सिमट गया। कांपते हाथ में इसका कॉलर झगड़ा। साईं, सुल्तान के दूर होने पर कनीज़ ने सहम कर पुकारा, आज रात मुझसे दूर मत जाओ। कनीज़, मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल मुझे सुकून के दे दो, क्योंकि फिर बाकी की सारी ज़िंदगी मुझे बेसुकूनी में गुजारनी है। सुल्तान ने इसे बेड पर लिटाकर इस पर झुकते हुए कहा, तो कनीज़ खुद सुबुद्दी के आलम में अपनी आंखें मीच गई। वो भला अपने सुल्तान को इनकार कर सकती थी? काश वो जानती कि सुल्तान की मोहब्बत का कितना आर्जी था। बहुत जल्द वो उसे एक ऐसा घाव देने वाला था जो कभी भी नहीं भर सकता। आन कमरे में वापस आई तो अशमान पहले से बेड पर बैठा कुछ पेपर्स देख रहा था। आन ने इसे नज़रअंदाज करते हुए कपड़े पकड़े और वॉशरूम में बंद हो गई। 3 दिन हो गए थे इन दोनों को वापस पहुंचे, लेकिन इन 3 दिनों में ना तो इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात की थी, ना ही एक दूसरे को मुखातिब करते थे। आज आन अभी तक इसका हर सितम बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन अपना तन मन इस पर निछावर करने के बाद भी अशमान का वो रवैया इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ चुका था। थक गई थी वो इसके सामने झुक कर। अब तो इसका ज़मीर भी इसे मलामत करने लगा था। इसलिए आन ने अशमान को इसके हाल पे छोड़ दिया और अब बस वो
گھر والوں کے سامنے اس رشتے کو نبھا رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید ابھی بھی باقی تھی کہ عائشہ کبھی نہ کبھی پھر سے جیسا ہو جائے گا۔ نہا کر وہ کمرے میں واپس آئے اور آنے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ جب اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز پڑی، آن نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہاں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آن کا دل بے ساختہ طور پر بہت زور سے دھڑکا۔ وہ پرس واپس ڈریسنگ پر رکھ کر عائشہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کے سامنے کیے۔ یہ کیا؟ آن نے پیپرز ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے جابس آرڈر ہیں، میں نے تمہاری لاہور کے ایک ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا، تمہیں وہاں جاب مل گئی ہے۔ عائشہ کی بات پر آن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن وہاں اچھی سیلری کے ساتھ ساتھ تمہیں ہاسٹل میں رہائش بھی مل جائے گی۔ اپنی پیکنگ کر لینا، تم کل یہیں سے جا رہی ہو۔ عائشہ کی بات پر آن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے تو میرے لیے گاؤں میں ہی ہاسپٹل بنایا تھا نا، تاکہ مجھے جاب کے لیے شہر جانا پڑے، آپ سے دور نہ جانا پڑے۔ آخری بات تو آن اپنے دل میں کہہ پائی تھی۔ ہاں، لیکن اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تم لاہور چلی جاؤ۔ لیکن کیوں؟ آن نے اب کی بار غصے سے پوچھا تو عائشہ نے اسے گھورا۔ تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور یہ میرا فیصلہ، جیسا کہا ہے چپ چاپ ویسا کرو۔ عائشہ کا لہجہ بہت زیادہ حکمیہ تھا۔ نہیں مان، انف از انف، میں آپ کی بیوی غلام نہیں جسے جتنا چاہے ذلیل کر لے۔ مانا مجھے معاف کرنا یا نہ کرنا آپ کا حق ہے، مت کرے معاف، لیکن اب میں اپنی ذات کی مزید تجویز آپ کے ہاتھوں برداشت نہیں کرنے والی۔ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے آن کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر بنی تھی تاکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے کام آ سکوں، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ آن نے حتمی فیصلہ سنایا، اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن عائشہ نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے پاس بٹھایا۔ تم نے سنا نہیں آن کہ میں نے کیا کہا ہے؟ تم کل رات ہی لاہور جا رہی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آن نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہاں سے نہیں جانے والی ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر آن اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ سوچ لو، اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو عائشہ کے خاموش ہو جانے کے بعد آن نے مڑ کر اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کچھ پل کے لیے خاموش رہا، پھر آنکھیں موند کر بولا، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ساتواں آسمان تک ایک ساتھ آن پر گرے۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنسو خود بخود بہہ کر گال پر آ گئے تھے۔ وہ ایک بت بنی عائشہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا تھی؟ کیا آپ کی محبت؟ یہ تھی وہ چاہت جس کا خواب آپ نے بچپن سے میری آنکھوں میں سنجویا تھا؟ آن کے سوال پر عائشہ نے اپنے جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ بولے عائشہ ملک، یہ تھی وفا جس کی قسمیں آپ نے کھائی تھی؟ کیا یہ تھا وہ عشق جو میری خطا معاف نہ کر سکا؟ آن کے آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے، جبکہ عائشہ پر سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا۔ اگر مجھ سے اتنا ہی اکتا گئے تو دعا کریں میں مر جاؤں، اگر دعا نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر مار دیں مجھے۔ آن نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل عائشہ کے ساتھ وہ ساتھ الفاظ مکمل طور پر توڑ چکے تھے۔ ویسے بھی میرے مرنے کے بعد اس قسم کی تصریح نہیں کریں گے نا تو آپ، کیونکہ آپ کے یہ الفاظ مجھے ویسے ہی مار چکے ہیں۔ اتنا کہہ کے آن روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عائشہ چاہ کر بھی اسے نہیں روک پایا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ بیٹ کے ساتھ پڑی میز پر مارا، لیکن اس نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ روب اعظم کہاں ہے؟ لیزا کی بے چینی پہ روب کھل کر مسکرا دی۔ سچ تو یہ تھا کہ لیزا نے صبح سے اعظم کو نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ اسے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ آج ان کے بابا کا سالانہ ختم ہوا تو سارا دن وہی مصروف تھے، ابھی نہ جانے کہاں ہیں وہ۔ روب کے بات پر لیزا نے گہرا سانس لیا۔ وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ آج کچھ خاص تھا، کیونکہ صبح سے بہت سے لوگ ان کے گھر میں قرآن پڑھنے آئے تھے۔ لیزا اعظم سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ آج سارا دن اسے نہ دیکھ کر لیزا کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ غلام سے پوچھتے ہیں، اسے ضرور پتہ ہوگا۔ لیزا کے حکم دینے پر روب اس کے پیچھے آئی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں غلام اعظم کے کمرے کے باہر کھڑا نظر آیا تو لیزا مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ اعظم کہاں ہے؟ لیزا کے سوال کے جواب پر غلام نے پریشانی سے ساتھ موجود کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ لیزا کے ماتھے پر بے ساختہ طور پر بل آ گئے۔ تم جا کر اسے کہو کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ لیزا کی فرمائش پر غلام مزید پریشان ہوا۔ آج ان کے ماں باپ کی برسی ہے چودھرائن جی، وہ یہ دن اکثر تنہائی گزارتے ہیں، آپ انہیں مجبور مت کریں۔ غلام نے سر جھکا کر کہا تو لیزا نے بے بسی سے روب کو دیکھا۔ لیزا کے اضطراب کو سمجھتی روب غلام کے راز ذرا قریب آئی۔ انہیں جانے دے، چودھری جی کے پاس وہ بیوی ہیں ان کی، اگر اس وقت ان کے غم میں کوئی شریک ہو کر انہیں دلاسا دے سکتا ہے تو صرف چودھرائن جی۔ روب کے اردو میں کہنے پر غلام نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا، پھر ہاں میں سر ہلاتا ہوا دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ لیزا نے مسکرا کر روب کو دیکھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر لیزا کے ماتھے پہ شکن آئی، لیکن ذرا سا آگے ہونے پر اس کی نظر اعظم پر پڑی، جو فرش پہ بیٹھا کھڑکی سے آنے والی تھوڑی سی روشنی میں ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا کی قدم خود بخود اس کی جانب اٹھا اور وہ اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لیزا کو محسوس ہوا کہ اعظم رو رہا تھا۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ اعظم کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہوا؟ لیزا کی پکار پر اعظم نے آنسو سے تر لال آنکھیں اٹھا
उठाकर इसे देखा। हल्की सी रोशनी में वो आंसू लीजा के दिल पे गिरे थे। क्यों आई हो तुम यहाँ? अकेला रहना चाहता हूँ मैं इस वक्त, अजम ने संजीदगी से कहा। फिर इससे तस्वीर को देखने लगा। लीजा जो उसकी बात नहीं समझी थी, अब की बार इसका हाथ थाम गई। गो अलोन, अजम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन लीजा इसका हुक्म समझकर अपनी जगह से नहीं उठी। जानती हूँ मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन अपना गम बताने से कम होता, और फिर मेरे ना समझने का ये फ़ायदा भी तो है ना। समझूंगी नहीं तो किसी और को बताऊंगी कैसे? लीजा ने इसका हाथ पे दबाव बढ़ाया। टेल मी प्लीज, जस्ट टॉक टू मी, लीजा ने बेचैनी से कहा। वो बस कैसे अब इसका गम कम कर देना चाहती थी, इसको समझना चाहती थी। अजम ने नम आंखों से अपने हाथ में मौजूद तस्वीर को देखा, फिर उंगली तस्वीर में नजर आते आदमी पर रखी। ये मेरे बाबा थे, सरदार यूसुफ चौधरी, इस गांव के अब तक के सबसे अच्छे सरदार, लोगों का दिल जीतने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले। अजम ने अपने बाबा की से उंगली उठा के साथ मौजूद औरत पर रखी। और ये मेरी माँ थी, समन चौधरी, मेरे बाबा को जान से ज़्यादा चाहने वाली एक वफादार बीवी और रहमदिल सरदारनी। अपनी माँ की जानिब देखते हुए अजम की आंखों में मोहब्बत का जहान था। जानती हो, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार दिया जितना कोई सोच भी नहीं सकता। जान से ज़्यादा चाहते थे वो मुझे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मोहब्बत भरे एक जहान में पाला था उन्होंने मुझे। अज़म के होठों को हल्की सी मुस्कान ने छुआ। बाबा को बहुत शौक था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, और मुझे ज़हर लगती थी पढ़ाई। 10 बार मैं 8वीं में से फ़ेल हुआ। आखिरकार वो मानने पर आ गए कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो सकती है, मगर इनका बेटा पास नहीं हो सकता। अज़म ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए लीजा को देखा, जो इसे ऐसे सुन रही थी जैसे इसका कहा एक-एक लफ्ज़ समझ रही हो। और मेरी अम्मी हमेशा मेरा साथ देती थी। मेरे फ़ेल होने पर मुझे कमरे में छिपा देती और बाबा का गुस्सा ठंडा करके इन्हें मेरे पास लाती। इतना कहकर अज़म का हल्का सा हँसा, जबकि 2 आँसू इसकी आँखों से बह निकले थे। बहुत खुशियाँ थी मेरी सुनसान हवेली में, ग़ज़ल बहुत चहचहाट थी। अज़म की आँखों में बेपनाह करब था, और उस करब को महसूस कर लीज़ा की पलकें भी नम हो गई। फिर एक दिन सब खुशियों को नज़र लग गई। मेरे माँ-बाप, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी मुझसे छिन गई। अज़म ने करब से अपनी आँखें मूंद ली। जानती हो, मेरे बाबा को जान से ज़्यादा चाहने वाली मेरी माँ ने खुद पेट्रोल पर डालकर खुद को आग लगा ली थी। ये बात कहते हुए बहुत से आँसू अज़म की आँखों से बहे, और इन आँसुओं ने शहद रंग की आँखों को भी नम होने पर मजबूर किया। और फिर मेरे मामू ने मेरे बाबा को ही मेरी माँ का कातिल समझकर इनकी जान लेने चले आए। अज़म इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक बिखरा हुआ शख्स मालूम हो रहा था। मेरे बाबा, मेरे मामू जी, इनकी दोस्ती ये गाँव मिसालें देता था। इन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। अज़म ने नज़रें उठाकर लीजा की जानिब देखा, और जुल्म के इंतहा तो देखो, इस अरशमान ने मुझे मेरे बाप जैसा घटिया कहकर मुझसे सब छीन लिया। मेरा हर बचा कुचा रिश्ता अपने हिस्से में रख गया वो। कितने हर आंसू अज़म के गालों से बहकर ज़मीन पोश हो गए थे। किसी को मेरी तन्हाई का एहसास नहीं आया। ग़ज़ल, किसी ने मुझसे नफ़रत करते हुए नहीं सोचा कि मेरा कोई गुनाह नहीं। अगर गुनाह था तो सिर्फ़ इतना कि मैं यकीन नहीं करना चाहता था कि मेरे बाबा ने मेरी माँ और मामू को मारा है। मैं आज भी नहीं मनाता ये। मैं आज भी नहीं मानता ये। अज़म ने बेबसी से सर झुका कर कहा, थक चुका हूँ तन्हाई की करब से, इस एहसास से कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं, मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं। अज़म ने नम पलकें उठा के लीज़ा को देखा, जो इसकी बातों को समझे बगैर भी नम आँखों से इसे देख रही थी। बस इतना चाहता हूँ कि कोई मुझे भी चाहे, मैं किसी की मोहब्बत, इसका दिल कुल जहान हूँ, लेकिन शायद मैं इस काबिल ही नहीं। इतना कहकर अज़म ने अपना सर झुका लिया, खामोशी से आंसू बहाने लगा। लीजा इसका दर्द, इसकी तकलीफ कम करना चाहती थी, लेकिन कैसे? अज़म तो इसकी बात को समझता ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद लीजा ने लफ्ज़ों की बजाय बस अपने दिल में उठने वाली जज्बात का सहारा लेना बेहतर समझा। वो अज़म के करीब हुई और उसका चेहरा हाथों में थाम कर ऊँचा किया। अपनी उंगलियों के पोरों से अज़म के आंसू पोंछने पर बाद उसके और करीबी और नरमी से अपने होंठ इसके दोनों आँखों पर रखे। इसके बाद इसने नरमी से इसके दोनों गालों को अपने होठों से छुआ, फिर आहिस्ता से इसके होठों की करीब आई। अज़म का ये कर्ब अपने होठों पर इसकी दहकती सांसें महसूस करके लीजा काँप कर रह गई थी, मगर फिर इसने हिम्मत करते हुए अपने होठ नरमी से इसके होठों पर रख दिए और जल्दी से इससे दूर हो गई। अपनी बेबाकी पर लीजा के रुखसार दहक कर गुलाबी हो गए थे। इसने वहाँ से उठकर जाना चाहा, लेकिन अब इतना आसान नहीं था। जिस मोहब्बत से इसने अज़म को जज्बात को हवा दी थी, अब वो कैसे इसे जाने देता। अज़म ने इसकी कलाई पकड़कर हल्के से झटके से अपनी जानिब खींचा, तो वो ज़मीन पर बैठे अज़म की गोद में पक्के आम की मानद गिर गई। अज़म ने अपना हाथ इसके बालों पर साथ शिद्दत से इसके लबों को अपने होठों से उलझा लिया। लीजा इसके अंदर जुनून कपकपा के रह गई, लेकिन चाह कर भी वो खुद को अज़म से रोक दूर ना कर पाई। हर गुजरते लम्हे के साथ अज़म का वो बढ़ता जुनून लीजा की सांस रोक रहा था। इसने अज़म से दूर होना चाहा, तो अज़म ने मज़ीद सख्ती से इसकी कमर को दबोच कर इसे अपनी तरफ जानिब खींचा। अज़म एक पल के लिए इसके होठों से हटा, तो लीजा ने सहम कर इसे पुकारा। अज़म ने पुरतश निगाहों से इसके गुलाबी हुए चेहरे और कपकपाते होठों को देखा, जो इसकी गुस्ताखी पे सुर्ख हो रहे थे।
अज़म ने इसका वहीं का अज़म ने वहीं इसे कारपेट पे लिटाया और इसके ज़बत करते हाथ अपने एक हाथ में थाम कर इसके सर पे ले गया, जबकि दूसरे हाथ से इसने लीज़ा के गले में मौजूद दुपट्टा इससे जुदा किया। बेबी लिसन लीज़ा ने इसे प्यार से सहलाना चाहा, लेकिन इस हट्टे-कट्टे आदमी को बेखुदी में बेबी पुकारने पर लीज़ा अपना होंठ तले दबा गई। अज़म ने आँखें छोटी करके इसकी इस हरकत को देखा, फिर अपने अंगूठे से इसका होंठ दाँतों से आज़ाद कर दिया। ये नाज़ुक रग मेरा और मेरी चूज़ी, इस पर ये सितम सिर्फ मैं ही ढाल सकता हूँ। इतना कहकर अज़म ने खुद पहले से सुर्ख नीचे होंठ को दांतों में लेकर दबाया। लीज़ा को पाते हुए अपनी आंखें जोर से मेज गई। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ऐसा आंसू में आज के बाद मेरी मलके से गुस्ताखी सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारा ये नाजुक इलायची चीज़ वजूद मेरी मोहब्बत सह ली, वही बहुत है। सजा का तो सोचा भी नहीं जा सकता। अज़म ने इसकी कमर में हाथ डाल के ऊपर किया और आहिस्ता से इसकी शर्ट की जिप खोलने लगा। नो प्लीज़। लीज़ा ने इसे रोकना चाहा, लेकिन अज़म इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो अपना ही तन्हाई में इसे बांटना चाहता था, अपना हर गम इससे मिटाना चाहता था। लीज़ा इसके होठों की नरमी और मूँछों की चुभन गर्दन पर महसूस करती काँप कर रह गई। अपनी आँखों से ज़ोर से महती अज़म की हर वाणी बर्दाश्त करती रही। इससे पहले कि अज़म बेखुदी में दीवार गिरा जाता, दरवाजे पे होने वाली दस्तक पर दोनों होश में आए। अज़म के दूर होते ही लीज़ा उठकर इससे दूर और हया से सुर्ख होते चेहरे से इसे देखने लगी। अज़म का दिल किया कि दरवाज़ा खटखटाने को वो यहाँ से भेज दिया और वो नाजुक सा कपकपाता वजूद फिर से अपनी आगोश में भर ले। क्या मसला है? अज़म ने गुस्से से पूछा। तो कुछ पल के लिए दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। अज़म तुम्हारे लिए फ़ोन है, इसके बाप का। गुलाम की बात पर अज़म ने गहरा सांस लिया। वो इस बात पर हैरान भी था कि इतने अरसे के बाद शायद मलिक ने इससे रब्ता करने का क्यों सोचा। आता हूँ। अज़म इतना कहकर लीज़ा के पास और उसे कंधे से पकड़ कर खड़ा करते हुए इसकी कमर अपनी जानिब की ओर ज़िप बंद कर दी। आज तुम्हारे बाबा ने बचा लिया तुम्हें चूज़ी, लेकिन आइंदा से सोच समझ कर मेरे करीब आना बहुत मुश्किल होगा, मेरा जुनून झेलना। लीज़ा को वार्न करता हुआ अज़म ने इसका दुपट्टा इस पर उड़ा दिया, खुद कमरे से बाहर निकल गया। जबकि इसके जाते ही लीज़ा अपने कमरे में वापस आ गई और वो पूरी रात इसने इन गुजरे लम्हों पर शर्माते और कपकपाते हुए गुजारी थी। लीज़ा इस वक्त लॉन में दरख्त की छाँव पे मौजूद झूले पर बैठी थी, जबकि ज़हन मुकम्मल तौर पर अज़म की जानिब था। वो कल इस रात अज़म की बातें समझ नहीं पाई थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि वो तस्वीर में मौजूद आदमी और औरत की वजह से दुखी था, और ये भी कि वो दोनों इसके माँ बाप थे। अचानक ही किसी ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो लीज़ा ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और रूप को अपने सामने देखा, मुस्कुरा दी। किसकी यादों में गुम हैं आप? रूप ने इसके पास बैठते हुए शरारत से पूछा। कसम से चौधरी जी, अभी तक आपने एक लफ्ज़ उर्दू का नहीं सीखा। मुझसे आपको अल्लाह का वास्ता है थोड़ी सी उर्दू सीख लें, और वरना चौधरी जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। रूप की बात पे लीजा ने गहरा सांस लेकर रह गई। मेरी बात सुनो रूप, तुम अज़म के माँ बाप के बारे में क्या जानती हो? इस सवाल पर रूप का माथे पर शकन हुआ। ज़्यादा तो नहीं जानती, क्योंकि मैं इस गाँव की नहीं, बस यहाँ गवर्नमेंट जॉब लग गई थी तो यहाँ आना पड़ा। बाकी लोगों से इतना सुना है कि चौधरी जी की माँ मुल्कों की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। काफ़ी खुश थी वो चौधरी जी के बाबा के साथ, लेकिन फिर ना जाने ऐसे क्या हो कि उन्होंने खुद पर तेल डालकर खुद को आग लगा ली। रूप की बात पर लीज़ा की आंखें खौफ से फैल गई। यानी अज़म अशमान का कज़न है? लीज़ा के हैरत से पूछने पर रूप ने इस बात में सर हिलाया। फिर लीज़ा ने दिलचस्पी से पूछा, अशमान के बाबा ने अज़म के बाबा को अपनी बहन का कातिल समझा और इन्हें मारने चले आए थे। नतीजा ये निकला कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। लीज़ा ने सहम कर रूप की तरफ देखा, लेकिन क्यों? इस सब की वजह क्या हुई? इस सवाल पर रूप ने बेबसी से इनकार में सर हिलाया। ये मैं नहीं जानती, लेकिन किसी ऐसे को जानती जो आपको इनके सवालों के जवाब दे सकता है। रूप ने कुछ सोचते हुए कहा और वहाँ से उठ खड़ी हुई। मैं 2 मिनट में आई। रूप ने की ज़ात को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया, वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद गुलाम को लेकर वहाँ पहुँची। आपने बुलाया चौधरान जी? गुलाम ने हाथ बांध कर हकीकत से पूछा। लीज़ा ने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या तुम मुझे कुछ बताओगे गुलाम ने सवालिया नज़रों से लीज़ा की जानिब देखा। अज़म के मॉम डैड को क्या हुआ था? लीज़ा के सवाल पर गुलाम बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा। मुझे नहीं लगता इस बात का जवाब देने के लिए मैं सही आदमी हूँ। गुलाम ने गहरा सांस लेकर कहा। प्लीज़ गुलाम, अगर तुम चाहते हो कि मैं अज़म का गम बांटूँ तो मुझे इसका गम जानना होगा। प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ था? लीज़ा की बात पर गुलाम गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने एक निगाह रूप को देखा, जो नज़रों से ही इसने जवाब देने की इल्तिजा करी थी। अज़म के बाबा यूसुफ चौधरी और शमान के बाबा मुजाहिद मलिक इस गाँव के सबसे अमीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, और जो चीज़ गाँव वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती थी वो थी इन दोनों की दोस्ती। गुलाम एक पल को रुका। दोनों दोस्त एक दूसरे के मुताफारिक थे। अशमान के बाबा गुस्से के ज़रा तेज़ थे, छोटी छोटी बातों में बंदूक निकाल कर धमकाना तो इनकी आदत थी, जबकि अज़म के बाबा बहुत ही ठंडे दिमाग के आदमी थे। लीज़ा के साथ साथ रूबी दिलचस्पी से गुलाम की बात सुन रही थी। सरदार चाहे यूसुफ चौधरी बनते थे, मगर इनको हमेशा मुजाहिद मलिक की सपोर्ट हासिल होती थी। मुजाहिद मलिक सरदार बने बगैर ही गाँव की फलाह में यूसुफ चौधरी का पूरा साथ देते थे। गुलाम ने भी एक नज़र लीज़ा को देखा, जो दिलचस्पी से इसकी बात सुन रही थी।
फिर इन दोनों ने दूसरी को रिश्तेदारी में बदलने का सोचा। यूसुफ चौधरी ने इनकी बहन समन मलिक का रिश्ता मांगा तो शाहिद मलिक ने इन्हें वो रिश्ता दे दिया और बदले में यूसुफ चौधरी की छोटी बहन शमा चौधरी का रिश्ता अपने छोटे भाई शाहिद मलिक यानी आपके बाबा के लिए मांगा। इसकी बात पर लिज़ा के माथे पर शकन आई। शाहिद मलिक कनाडा में पढ़ाई करते थे, जहाँ इनकी मुलाकात आपकी वालदा से और इन्हें इनसे मोहब्बत हो गई। वो शमा चौधरी से शादी करना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के धमकाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मलिक ख़ानदान की बेटी चौधरों में, जबकि चौधरी की बेटी मुल्कों में ब्याह दी गई। गुलाम ने गहरा सांस लिया। फिर एक दिन मुजाहिद मलिक का सामना फरहीन हम्माद से हुआ, जो 18 साल की उम्र में मुजाहिद मलिक के खेतों में काम करने के घर से आई थी। मुजाहिद साहब ने इनसे वजह पूछी तो बताया कि वो और इनके छोटे बहन भाई यतीम हो चुके हैं और अपने बहन भाई की कफालत के लिए इनके पास काम करना चाहती है। मुजाहिद को इनके जज्बे से काफ़ी उनसियत थी। उन्होंने फरहीन के चचा से इनका हाथ मांग लिया। शादी के बाद इनके छोटे भाई बहन की कफालत का जिम्मा भी खुद ले लिया। गुलाम खौफ सी कैफियत में बोल रहा था, जिससे कि सारा मंजर इसकी आंखों के सामने चल रहा हो। पहले तो सब अच्छा चलता रहा, फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सबको बर्बाद कर दिया। वो सब याद करके गुलाम के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। माजी एक गाड़ी मुल्कों की हवेली के बाहर रुकी, जिसे देखकर लॉन में खेलते अशमान सुल्तान के चेहरे पे एक मुस्कान आई। जम भाई 3 साला सुल्तान ने खुशी से चहकते हुए कार उठकर भागने लगा, लेकिन 6 साला अशमान इससे ज़्यादा तेज़ भागकर पहले ही गाड़ी से निकले। अजम के गले लग चुका था। पीछे हटो, मेरा जम भाई है। सुल्तान ने अपने नन्हे हाथों से अशमान को धक्का देते हुए कार खुद अजम से लिपट गया। बच्चों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत देखकर यूसुफ व समन मुस्कुरा दिए। पप्पो से नहीं मिलोगे या बस अजम के आने की खुशी है तुम दोनों को? समन की आवाज़ पर दोनों अजम से जुदा होकर समन की टांगों से लिपट गए। पप्पो, आपको पता है पापा ने कहा था चाचा के यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आएगी और वो गुड़िया मेरी होगी। अशमा ने सर उठाकर समन को बताते हुए मुस्कुरा दी। ओह अच्छा, तो नाम सोचा है गुड़िया के क्या रखोगे? इस सवाल पर अशमान गहरी सोच में पड़ गया। पता नहीं, गुड़िया ही रख लूँगा। इसकी बात पर यूसुफ और समन दोनों हंस दिए। तभी मुजाहिद मलिक मुस्कुराते वहाँ पर आए। रोक लिया दोनों ने। इस रास्ते में ही कम से कम अंदर तो आने देते। मुजाहिद ने याद को गले लगाते हुए कहा, फिर मुस्कुरा कर अपनी बहन को देखा। चलो अंदर चलते हैं और तुम दोनों अजम को ज़्यादा तंग मत करना। यूसुफ ने अशमान और सुल्तान को घूरते हुए कहा, ये मुझे तंग नहीं करते मामू भाई। ये मुझे तंग नहीं करते, मामू भाई हैं मेरे। अज़म ने एक बाजू अशमान और दूसरे सुल्तान के कंधे पर रखते हुए दोनों को करीब करके कहा तो मुजाहिद मुस्कुरा दिए और यूसुफ और समन को लेकर हवेली में दाखिल हो गए। अज़म भाई, क्या नाम रखूँ मैं अपनी गुड़िया का? अशमान ने मासूमियत से पूछा। बिल बतौड़ी रख ले। अज़म की बात पर अशमान का मुँह बन गया तो अज़म कहकमा लगाकर हंस दिया और हंसता देखकर सुल्तान भी हंस दिया। हवेली में दाखिल होते समन से अम्मा के पास चली गई और यूसुफ और मुजाहिद बाहर बैठे बेचैनी से इंतजार करते। बहन के लिए फिक्रमंदी यूसुफ के चेहरे पर साफ लग रही थी। शायद नहीं आया यूसुफ, इसे इस वक्त में शमा के साथ होना चाहिए था। यूसुफ की बात पर मुजाहिद ने गहरा सांस लिया। क्या तो तुम ठीक रहो, लेकिन बस इसे टिकट नहीं मिली वापसी की, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर के बाद समन खुशी से चहकती हुई हॉल में दाखिल हुई, जबकि बाहों में कंबल में छुपा एक नन्हा सा वजूद था। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है शाहिद भाई को। समन की खुशी से कहने पर दोनों ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया। यूसुफ ने बेसाख्ता एक छोटी सी बच्ची को बाहों में थामा। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी शमा जैसी है। यूसुफ ने बच्ची को मुजाहिद के सामने किया तो उन्होंने उसे बाहों में उठा लिया। इन दोनों की हवेली में वो पहली बेटी पैदा हुई थी और दोनों ने इस बात से बेइंतहा खुश थे। माशाल्लाह, मिठाई के टोकरे मंगवाओ, आज पूरे गाँव में मिठाई बांटी जाएगी। मुजाहिद ने मुलाजिम को हुक्म दिया, जो इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। शमा कैसी है समन? यूसुफ ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा भी और फरीन भाभी इसी के पास हैं। अपनी बहन की सलामती का जानकर यूसुफ ने खुदा का शुक्र अदा किया। चलो इससे मिलकर इसे मुबारकबाद देते हैं, यूसुफ ने कहा तो वो तीनों कमरे में मौजूद शमा के पास आए और मुजाहिद ने इसकी बेटी को इसके साथ लिटा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो शमा, तुम्हें ये बच्ची तुम्हारी और शाहिद की ज़िंदगी में रहमत बनकर आई है। मुजाहिद की बात पर शमा ने नम आँखों से अपनी बच्ची को देखा। वो नहीं जानती थी कि इसके नसीबों में क्या लिखा था। आज तक इसने ये बात यूसुफ और मुजाहिद से छुपाई थी कि शाहिद की ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। वो अपने दोनों बड़े भाइयों का मान कैसे तोड़ने देती, जिन्होंने इसे बड़े मान से शाहिद की दुल्हन बनाया था। बस दुआ करें भाई साहब, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे इंशाअल्लाह। मुजाहिद ने मुस्कुरा कर कहा। तभी अशमान और सुल्तान आज़म भागते हुए वहाँ आए। ये कौन है बाबा? सुल्तान ने शमा के पास
पास जाकर नन्ही सी गुड़िया को देखना चाहा, लेकिन अर्शमान ने इसे खींचकर इसे दूर किया और इसे बुरी तरह से घूरने लगा। ये मेरी गुड़िया, पहले मैं देखूंगा। अर्शमान की बातों सबके होठों पर एक मुस्कुराहट आई। अर्शमान ने मुस्कुराकर इस नन्ही सी गुड़िया को अपनी बाहों में उठा लिया। मुजाहिद ने फरीन को इशारा किया तो उन्होंने एक डिबिया मुजाहिद को पकड़ाई। मुजाहिद ने इजाज़त तलब नजरों से अम्मा भी की जानिब देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। शमा, ये मैंने तुम्हारी बेटी के लिए बनाई थी, तुम जानती हो इसके पैदा होने से पहले ही मैंने इसे अपने अर्शमान के लिए सोचा था। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसे गोटी पहनाकर अपने अर्शमान के नाम कर देना चाहता हूँ। मुजाहिद की बात पर शमा ने एक नज़र अपने पास बैठे अर्शमान को देखा, जो इसकी बेटी को बाहों में लेकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जैसे आपकी मर्जी भाई साहब। इस जवाब पर मुजाहिद ने सवालिया नज़र से यूसुफ को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। तो मुजाहिद ने मुस्कुराकर वो अंगूठी इस बच्ची की छोटी सी उंगली में डाल दी। तुमने इसका नाम क्या सोचा है शमा? समन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने तो नहीं सोचा भाभी, भाई साहब की अमानत है, अब ये जो नाम रखेंगे मुझे मंजूर होगा। शमा की बात पर मुजाहिद मुस्कुरा दिया। इन्हें अपने भाई के मुकद्दर पर फ़ख्र हुआ, जिसके नसीब में शमा जैसी वफादार औरत का साथ लिखा था। आन, मैं इसका नाम आन रखूँगा, मेरे अर्शमान की आन, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सब ने मुस्कुरा कर कहा। सब लोग मुस्कुराकर छोटी सी आन को देखने लगे, इस बात से बेखबर के खुशियाँ कितनी आर्जी हुआ करती हैं। अच्छा वक्त पर लगाकर उड़ गया था, सब बदल गया था। इनके बच्चे बड़े हो चुके थे। अगर कुछ नहीं बदला तो अर्शमान की आन के लिए चाहत और फिक्र शमा से ज़्यादा तो वो आन का ख्याल रखता था। अपने और शाहिद के रिश्ते की वजह से जो फिक्रमंदी शमा को थी, वह अर्शमान की मोहब्बत देकर दूर हो गई थी। वो जो समझ चुकी थी कि अर्शमान इनकी बेटी को जान से ज़्यादा ख्याल रखेगा। उन्होंने तो जैसे तैसे शाहिद जैसा लापरवाह इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार ही थी, लेकिन इनकी बेटी का मुकद्दर खुशी और मोहब्बतों से भरा हुआ था। अभी कुछ ही देर पहले 18 साल अर्शमान, 16 साल सुल्तान और 12 साल आन को मेला घुमा कर लाया था, और आन अब खुशी से चहकते हुए हर वो चीज़ अपनी माँ को दिखा रही थी जैसे अर्शमान ने लेकर दी थी। तभी शाहिद कमरे में दाखिल हुए और एक नज़र इन माँ बेटी को देखकर वॉशरूम में चले गए। मुजाहिद की सख्ती से बुलाने पर शायद चंद दिन पहले ही 5 साल के बाद पाकिस्तान आए थे। शमा को उम्मीद थी कि शायद इनका ये रवैया बदल गया होगा, लेकिन इनका रूखा अंदाज शमा की उम्मीद एक बार फिर मिटा गया। अचानक से मोबाइल बजने की आवाज़ पर शमा ने शाहिद की जेब से वो बटन वाला मोबाइल निकाला और इसे देखने लगी। एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने के बाद उन्होंने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। शाहिद कब वापस आओगे तुम? ये लीज़ा ने जीना हराम किया है, मेरा तुम्हारे बगैर खाना पीना तक छोड़ चुकी है। शमा के कॉल पिक करते एक औरत ने गुस्से से इंग्लिश में कहने लगी। जी 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 आप कौन? शमा ने घबराते हुए इंग्लिश में पूछा। तुम कौन हो? शाहिद कहाँ है? इस सवाल पर शायद शमा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा। मैं मुलाजमा हूँ, आपका कोई पैगाम है तो बता दें। शमा की बात पर कुछ देर के लिए वो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शाहिद घर आए तो उसे कहना कि कनाडा से इसकी बीवी मार्था का फ़ोन था, जो ये कहना चाह रही थी कि इसकी बेटी ने इसकी बीवी का जीना हराम किया, तो जल्द से जल्द कनाडा वापस आ जाए। इतना कह के मार्था ने फ़ोन बंद कर दिया। शमा सकते के आलम में आ चुकी थी। कितनी आंसू इसकी आंखों से बहकर ज़मीन पे गिरे थे। शाहिद ने बाहर आकर इसके हाथ में अपना मोबाइल देखा तो गुस्से से इसके पास आए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? शाहिद ने मोबाइल पकड़कर रिसीव कॉल में मार्था के नंबर देखा तो घबरा गए। आपने कनाडा में शादी की हुई शायद, और आपकी एक बेटी भी है? इससे शमा ने नम आवाज़ में पूछा तो शाहिद ने गहरा सांस लिया। हाँ की हुई है। इनके जवाब पे शमा ने शिकवा गना निगाहों से इनकी जानिब देखा। आज तक आपकी बेरुखी लापरवाही सब बर्दाश्त करती रही हूँ मैं, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अभी जाकर मुजाहिद भाई साहब को सब बता दूंगी। इतना कहकर शमा वहाँ से जाने लगी तो शाहिद ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मार दिया। खबरदार, जो एक कदम भी बाहर निकाला तुमने, यहाँ से जान ले लूंगा तुम्हारी। शाहिद के गुस्से पर आन ने भी सहम कर अपने बाप को देखा। शादी की है ना मैंने, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मर्द को 4 शादी की इजाज़त है बीबी, और इतनी सालों में तुम मेरे दिल में अपनी जगह ना बना पाई तो मैं क्या करता? शमा ने हैरत से शाहिद को देखा। वो शाहिद से पूछना चाहती थी कि शाहिद ने इसे मौका ही कब दिया था। मार्था से मैं मोहब्बत करता हूँ, बहुत खुश हूँ इसके साथ। सुना था तुमने मुझे तुम्हारी ना कल ज़रूरत थी ना आज कोई ज़रूरत है। शायद कितनी आसानी से अपने अल्फाज से शमा का दिल छलनी कर गया। अगर शौक़ पूरा करना है ना भाई साहब को बताने का तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, अब इनसे डरूंगा नहीं मैं, बल्कि इनके सामने तुम्हें तलाक दे दूँगा, फिर इसको उठाकर चली जाना अपने भाई के घर, तलाक का धब्बा लगा कर। शमा ने बेयकीनी से इस आदमी को देखा। क्या कोई इस कदर भी संगदिल हो सकता है? शायद मैंने कहा था ना भाई साहब के मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, नहीं समझता तो मैं अपने काबिल, लेकिन वो नहीं माने। अब भुगतो तुम। इतना कहकर शायद कमरे से बाहर चले गए और शमा फर्श पे बैठी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, आन ने रोते हुए शमा को पुकारा और उसके सीने से लपट गई। आप मत रो अम्मी, मैं बड़े पापा को पापा की शिकायत लगाऊंगी, फिर वो मारेंगे इन्हें। आन की बात पर शमा ने इनकार में सर हिलाया। नहीं आन, तुम्हें मेरी कसम है, किसी को कुछ मत बताना। मैं अपने भाई का सर शर्मिंदगी से झुकता हुआ नहीं
दे सकती। शमा ने आन को अपने सीने से लगा कर कहा, फूट फूट कर रो दी। उन्होंने सोच लिया था कि इनकी बेटी ही इनके जीने का सहारा थी, वो इसी के सहारे से वो ज़िंदगी का ही कड़वा घूंट पीने को तैयार थी। तुम मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारोगी आन, शमा तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। देखना तुम, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने देगा वो, तुम खुश रहोगी अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी माँ की बदकिस्मती का साया तुम पर नहीं पड़ेगा आन, नहीं पड़ेगा। आन का मासूम ज़हन वो बातें समझ नहीं पाया था, लेकिन अपनी माँ के आंसू से फूट फूट कर रोने पे मजबूर कर गए थे। मुजाहिद, फ़रहीन बेगम के पुकारने पे मुजाहिद ने सवालिया नज़र से देखा। नरमीन का फ़ोन आया था, साहिल याद कर रहा है मुझे, आप इसे यहाँ बुला लेना। फ़रहीन ने मुजाहिद के पास बैठते हुए अपनी बहन भाई का जिक्र किया। मुजाहिद ने फ़रहीन से जो वादा किया था वो पूरा भी किया था। फ़रहीन की छोटी बहन नरमीन की शादी वो शहर में एक अच्छे का आदमी से करवा चुके थे, जबकि इनका छोटा भाई साहिल, जो कि बचपन से गूंगा बहरा था, नरमीन के पास ही रह रहा था। तुम जानती हो फ़रहीन, साहिल यहाँ आकर बहुत ज़्यादा आवारागर्द हो जाता है। कितनी बार गाँव की औरतें ने इसकी शिकायत की, इसी वजह से शहर से नरमीन के पास भेजा है मैंने, वहाँ पर वो ठीक रहेगा। मुजाहिद की बात पर फ़रहीन का मुँह बन गया। इतना मासूम है मेरा मुजाहिद, बेचारा ना सुन सकता है ना ही बोल सकता, और ये गाँव की औरतें तो बस मौका चाहे इन्हें किसी बेचारे पर इल्ज़ाम लगाने का। फ़रहीन की बात पर शाहिद ने गहरा सांस लिया। वो जानते थे कि फ़रहीन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार जितना वो अशमान और सुल्तान से करती थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बुला लो इसे यहाँ, लेकिन ख्याल रखना इसका। फ़रहीन ने खुशी से चहकते हुए हाँ में सर हिलाया। इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि इनका भाई यहाँ पर आ रहा है। 35 साल का होने के बावजूद फ़रहीन साहिल को बच्चा ही समझती थी, क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकता था। इसलिए ना तो साहिल की शादी हुई थी, ना ही फ़रहीन का ऐसा कोई इरादा था। वो बस हमेशा अपना बेटा बनाकर पालना चाहती थी, बिल्कुल जैसे माँ बाप की मौत के बाद उन्होंने अपने बहन भाई को बच्चों जैसा पाला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मा भी लाउंज में बैठी, जब इनके कानों में अपनी बेटी समन की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने खुशगवार हैरत से सर उठाकर समन को देखा, जो 20 साल अज़म और यूसुफ के साथ घर में दाखिल हुई थी। कैसे हो मेरे बच्चों, आओ बैठो। अम्मा भी ने सबको बारी बारी प्यार देते हुए कहा। नहीं अम्मा भी, बैठने नहीं आए, बस आपकी बेटी को आपके पास छोड़ना था ज़रा। क्यों खैरियत? अम्मा भी ने परेशानी से यूसुफ से पूछा। बाबा मेरा दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में करवाना चाहते हैं नानू की, शायद मैं पढ़ लूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता पढ़ना अज़म चौधरी की गुट्टी में ही शामिल नहीं। अज़म ने अपना कॉलर झाड़ कर कहा तो अम्मा बीबी और समन हंसती, और यूसुफ ने अज़म का कान अपने हाथ में पकड़ा, जो इनके लिए ज़रा सा मुश्किल था, क्योंकि अज़म अब इनसे भी ज़्यादा कट निकाल चुका था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, चल कर गाड़ी में बैठो ज़रा, यूसुफ ने कहा। तो अज़म अम्मा बी की जानिब देखकर एक आंख दबाता वहाँ से चला गया। बस दुआ करें अम्मा बी के इस बार ये थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, बड़ी फिक्र है मुझे इसकी, और इसे बिगाड़ा आपकी बेटी ने है, जो अब यहाँ बैठी हंस रही है। यूसुफ ने ज़रा सा घूर कर समन को देखा, फिर इनकी मुस्कुराहट पर मुस्कुरा दिए। वो अपनी जान से प्यारी बीवी पर गुस्सा कर ही कब पाते थे। इंशाअल्लाह बेटा, मेरी दुआएं तुम सबके साथ है। यूसुफ ने मुस्कुरा कर अपना सर अम्मा बी के सामने किया, तो अम्मा बी ने इनके सर पे हाथ फेर कर इन्हें दुआ दी। चल कल तक आ जाएंगे मैं और अज़म वापस, मेरी बीबी का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर यूसुफ वहाँ से चलेगा, और समन ने मुस्कुराकर अम्मा बी को देखा। मैं शमा के पास जा रही हूँ अम्मी, बाद में आती हूँ, अम्मा बी ने मुस्कुराकर कहा। तो समन वहाँ से चली गई। इनकी बेटी की खुशियाँ इन्हें इत्मीनान देती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो खुशियाँ किसी की नज़र भी में आ चुकी थी। आधी रात का वक्त था और इस मामूल समन को चाय की तलब हुई। ये आदत भी यूसुफ ने ही से डाली थी, देर देर रात तक जाग कर बातें करने वाली और चाय पीने वाली। अब चाय पिए बगैर इन्हें नींद कहाँ से आती। एक गहरा सांस लेकर समन ने पास हुई सोई शमा और आन को देखा और उठकर किचन में चाय बनाने आ गई। रात के 2 बजने की वजह से हवेली बिल्कुल सुनसान थी। समन ने चाय चूल्हे पे रखी तो इन्हें अपने पीछे किसी की आहट का एहसास हुआ। समन सहम कर पलटी, लेकिन अपने पीछे फ़रहीन के छोटे भाई साहिल को देखकर मुस्कुरा दी, जो इनसे 3 साल छोटा था। क्या हुआ? समन ने इशारा करते हुए पूछा, तो साहिल ने अपने पेट की जानिब इशारा किया। भूख लगी है? समन ने फिर से इशारे करके पूछा, तो साहिल ने इस बात में सर हिलाया। समन ने फिर से खाना निकाला, उसके लिए गर्म करने लगी। इनका सारा ध्यान अपने काम पर था और साहिल इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि साहिल इनके पीछे खड़ा किन नज़रों से इन्हें देख रहा था। अचानक ही साहिल ने आगे बढ़कर इनका सफ़ेद नरम हाथ अपने से हाथ में थाम लिया, तो समन ने सहम कर इसे देखा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? समन ने खींच कर अपना हाथ इसे छुड़वाया, तो साहिल ने घूर कर नहीं देखा और अब की बार इन्हें कमर से पकड़ अपनी जानिब खींचा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? समन ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। समन ने सहम कर चिल्लाने के लिए अपना मुँह खोला, तो साहिल ने अपना भारी कम हाथ इनके मुँह पे रख दिया। समन की मजम्मत मज़ीद ज़्यादा हो गई, लेकिन इस हट्टे-कट्टे मर्द के सामने इनकी कोई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने की, लेकिन इसने इन्हें कोई मौका नहीं दिया। इन्हें वहीं किचन के फर्श पे फेंक कर इन पर अपनी दरिंदगी मिठाता वहाँ से उठकर चला गया, जबकि समन अपनी बेबसी पे एक कोने में बैठ सिमटी फूट कर रो दी। इन्हें अपने आप से नफरत हो रही थी, जो अपने शौहर की अमानत का ख्याल नहीं रख पाई। क्या मुँह दिखाती हूँ अपने शौहर और जवान बेटे को। ये सब सोचकर समन का दिल किया अपनी जान ले ले, ताकि इन्हें अज़म और यूसुफ का सामना न करना पड़े।
सुबह समन शमा को फटे कपड़ों के साथ बिखरी हालत में किचन के फर्श पे बेहोश मिली तो उन्होंने सहम कर इन्हें अपनी चादर से ढांपा और जल्दी से मुजाहिद को बुलाने चली गई। समन को जब होश आया तो वो एक बेड पर थी, हर कोई इनके पास बैठा था। समन की नजर अम्मा भी पर गई तो अपनी माँ को देखा वो फूट फूट कर रो दी। समन, क्या हुआ मेरा बच्चा, बता मुझे, अम्मा भी ने परेशानी से पूछा। समन की वो हालत इन्हें बहुत परेशान कर रही थी। अम्मी, समन इनके सीने से लगकर सिसक कर रो दी। अम्मा भी ने परेशानी से मुजाहिद और फरीन को देखा जो खुद बहुत परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ समन, बता मुझे, अम्मा भी ने इनके बहाल सहलाते हुए पूछा। अम्मी, वो साहिल ने वो। समन ने रोते हुए अम्मा भी को हर बात बता दी जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स पत्थर का हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अम्मी मेरा भाई इतना मासूम है, वो बेचारा तो सुन भी नहीं सकता, बावला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। फरीन ने रोते हुए कहा तो समन ने शिकवा भरा निगाहों से देखा। मैं झूठ बोल रही हूँ बाबू, भाभी, हाँ झूठ बोल रही है, तो मेरा भाई नहीं कर सकता। और ऐसा मुजाहिद, आपकी बहन मेरे मासूम भाई पर झूठा इल्जाम। चटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने फरीन के अल्फाज इनके मुंह में रोक दिए। मेरी बहन ने आज तक झूठ नहीं बोला, सुना तुमने, कसूर तुम्हारे भाई का, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुजाहिद वहां से जाने लगे तो फरीन ने फौरन रोते हुए इनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मुजाहिद, वो बच्चा, ऐसा मत करे, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। समन ने हैरत से अपनी भाभी को देखा। क्या इसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी? तुम्हारे इस बच्चे ने मुझे सर उठाकर जीने से काबिल नहीं छोड़ा। क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्त को, इसकी इज्जत की हिफाजत ना कर सका? क्या जवाब दूंगा इसके जवान बेटे को मैं? फरीन, क्या बताऊं मैं सबको कि मेरे गूंगे बहरे साले ने ही मेरी बहन को बेआबरू। इससे आगे मुजाहिद से कुछ बोला नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी जबकि समन की आंसू से तर आंखों दरवाजे तक गया तो वो सांस लेना भूल गई। तो वहीं दरवाजे में यूसुफ और अजम सकते ख्याले में खड़े मुजाहिद को देख रहे थे। इनके चेहरे से लगा था कि मुजाहिद की हर बात सुन चुके थे। अपने जवान बेटे की बीची मुठियां देखकर समन का दिल किया कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। भाई साहब, ये सच नहीं है, आपकी बीवी झूठा इल्जाम लगा रही है, मेरा भाई पे ऐसा कुछ। फरहीन ने कुछ कहना चाहा लेकिन यूसुफ ने एक निगाह समन की तबाह हालत पर डाली और गुस्से से पलट कर हवेली से निकल गए। मुजाहिद और फरहीन परेशानी से इनके पीछे गए। यूसुफ, मेरी बात सुनो। मुजाहिद ने यूसुफ को पुकारा लेकिन यूसुफ इनकी सुनने बगैर हवेली की जानिब आया जहाँ साहिल का कमरा था। कमरे का दरवाजा खुलने पर इनकी नजर साहिल पर पड़ी जो सुकून से चारपाई पर लेटा सो रहा था। यूसुफ ने इसे गिरबान से झगड़ा और बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। भाई साहब, नहीं छोड़े मेरे भाई को, फरीन ने रोते हुए कहा लेकिन यूसुफ किसी की बात सुन कहाँ रहे थे। बस वो बुरी तरह से साहिल को मार रहे थे। फरीन ने आगे होकर अपने भाई को छुड़वाना चाहा लेकिन मुजाहिद ने इनका हाथ मजबूती से थाम के इन्हें करीब जाने से रोका। तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया, मेरी इज्जत को, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। यूसुफ ने जख्मों से चूर साहिल को खुद से दूर फेंक कर कहा और फिर इसी की चारा काटने वाली दरांती हाथ में पकड़ी और इसे साहिल के गले में मार दिया। ये देखकर एक दिल का चीख फरीन के होठों से निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई जबकि कमरे के कोने में खड़ा अजम नफरत से बेजान पड़े साहिल को देख रहा था। इसका बस चलता तो इसे फिर से जिंदा करके खुद मारता। साहिल की तस्लीम शाम होते ही कर दी गई थी। तस्लीम के बाद यूसुफ समन को अपने साथ ले गए थे। समन जाना नहीं चाहती थी लेकिन यूसुफ ने वादा किया था वो उनको संभाल लेंगे। खुद से हुए वाक़ये के बाद समन मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी और यूसुफ को लगा था कि वो उन्हें संभाल लेंगे इसलिए वो अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन आधी रात को उनकी आवाज़ दिलखरेज चीखों पर खुली। वो घबराहट के मारे उठकर किचन की जानिब आए जहाँ से वो चीखें सुनाई देती। तभी अज़म भी वहाँ आया जो परेशानी से इन्हें देख रहा था। बाबा, यूसुफ ने किचन के दरवाजे को हिलाया लेकिन वो अंदर से लॉक था। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का लगाया तो खुल सा गया लेकिन सामने का मंजर देखकर दोनों पर ही आसमान टूट कर गिरा था। समन आँख में लिपटे वजूद के साथ जमीन पर गिरी चीख रही थी। यूसुफ ने जल्दी से किचन का भारी पर्दा उतार कर इन पर फेंकते हुए आग को बुझाने की कोशिश की जबकि अपनी माँ को इस हाल पर देखकर अजम हजार मौत मारा था। आग बुझाते ही यूसुफ इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। सुबह होते ही पूरे गाँव में खबर आग की तरह फैल गई। चित्रार ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। मुल्कों की हवेली से सब लोग चौधरी की हवेली पहुंच चुके थे। अपनी बेटी की हालत देख अम्मा भी और मुजाहिद फूट फूट कर रो दिए। अरशमान और सुल्तान परेशानी से अजम के पास गए जो रो भी नहीं रहता, बस मुर्दा आंखों से एक कोने में खड़ा अपनी माँ की मैयत को देख रहा था। भाई से अमन ने रोते हुए यूसुफ के कंधे पर अपना हाथ रखा जो समन की मैयत के पास बैठे मुर्दा आंखों से देख रहे थे। अजम की तरह ना तो वो कुछ बोल रहे थे ना ही एक आंसू इनकी आंख से गिरा था। वो कह रही थी यूसुफ के तुम्हारा और अजम का सामना नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, तुम दोनों का सामना नहीं कर पाई। अम्मा भी ने रोते हुए कहा तो दो आंसू यूसुफ के आंसू से बाहर निकले। नहीं अम्मा भी, मेरी समन इतनी कमजोर नहीं थी कि खुद की जान लेती, वो बहुत बहादुर थी। वो जानती थी कि मेरी मोहब्बत इसकी ताकत है, वो जानती थी मैं इसके साथ हूँ। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा तो मुजाहिद नम आंखों से अपने दोस्त को देखने लगा। इसने खुद को नहीं मारा, ये ऐसा हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे लेकिन मैं समझूंगा और उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया, मुझे अपनी समन की कसम है। यूसुफ ने अपना हाथ मैयत पर रखकर कहा वहाँ से उठकर चले गए। शाम तक तदफीन कर दी गई क्योंकि इनकी लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। इन सबको लगा था कि कयामत इन पर आकर गुजर रही थी लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
वो सब कुछ देर पहले ही मुल्कों की हवेली से वापस आए थे। अम्मा भी ने तो वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए गुजारना चाहते हैं, इसलिए अम्मा भी अज़म को मजबूर करके अपने साथ ले आई थी, क्योंकि इन्हें अज़म की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिसे अभी तक एक आंसू भी अपनी माँ की मौत पे नहीं बहा था। हवेली पहुँचकर अम्मा भी ने एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने अज़म को नींद की दवाई दी। इस दवाई के ज़ेर असर अज़म को सोता देकर अम्मा भी ने सुकून का सांस लिया, उसके पास बैठकर इसके बालों में हाथ चलाने लगी। बेटी को खोने का गम इसकी औलाद को देखकर मज़ीद हरा हो रहा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मुजाहिद के गुस्से से भरपूर आवाज़ अम्मा भी के कानों में पड़ी, तो वो परेशानी से अज़म के पास से उठी और दरवाज़ा बंद करती बाहर हॉल में आ गई, जहाँ मुजाहिद गुस्से से मुठियाँ भेजे दो मुलाजिमों को देख रहे थे। वही मलिक जो सच है, हमने अपनी आंखों से देखा था, एक मुलाजमा ने कहा, घबराई सी निगाह साथ खड़ी मुलाजमा पर डाली। इस रात चौधरी जी जब हवेली वापस आए थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अज़म बेटा तो घर आते ही कहीं बाहर चला गया था, लेकिन चौधरी जी बहुत देर तक चौधरान पर चिल्लाते रहे और चौधरान जी बस रोती ही रही थी, एक मुलाजमा ने बताया था। फिर रात को चौधरी जी ने सब मुलाजमों को घर जाने का कह दिया। जाना तो हम दोनों को भी था, लेकिन देर होने की वजह से ना जा सके। इतना कह पहली मुलाजमा ने दूसरी की जानिब देखा। आधी रात को हमारी आँख चौधरान जी की चीखों से खुली। हम दोनों डर के हवेली आए तो देखा चौधरी जी चौधरान जी को बुरी तरह से मारते और बदकार और न जाने क्या क्या गालियाँ निकाल रहे थे। मुजाहिद हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। फिर वो चौधरान जी को बालों से पकड़कर बोरसे खाने के ले गए। चौधरान जी बहुत चिल्ला रही थी। उन्होंने चौधरी जी को फर्श पे फेंक कर इन पर तेल डाला और माचिस की तील जलाकर इन पर फेंक दी। इनकी बात पर सबकी आंखें हैरत से फैल गई। हम बहुत ज़्यादा डर गई थी, इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुलाजमा ने सहम कर कहा तो दूसरी की जानिब देखने लगी। चौधरान जी जलते हुए चीख रही थी। फिर चौधरी जी बाहर आए और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जब उन्होंने अज़म बेटे को वहाँ आते देखा तो खुद को आगे होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। इतना कहकर मुलाजमा खामोश होकर वहाँ मौजूद हर शख्स इनकी बात पर पत्थर का हो चुका था। यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता मुजाहिद, मैं नहीं मानती इन बातों को। अम्मा भी ने मुजाहिद के पास आकर परेशानी से कहा, जी 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 भाई साहब, यूसुफ भाई ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। शमा के कहने पर मुजाहिद ने अंगारा होती आंखों से मुलाजमों को घूरा। हमारे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं मलिक जी, बस हम आपको सच से आगाह करना चाहती थी। बाकी बात जब किरदार के गैरत पर आती तो अपने होश हवास में नहीं रहता। इतना कहकर मुलाजिम वहाँ से चली गई, जबकि मुजाहिद कितनी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर वो अपने कमरे से रिवॉल्वर लेकर आया तो सब लोग सहम कर इसे देखने लगे। मुजाहिद, ये तो मुँह फिक्र मत करे अम्मा जी, मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर इसे सही जवाब दिए तो ठीक है, वरना इसे मेरी इस गोली से कोई नहीं बचा सकेगा। इतना कहकर मुजाहिद बाहर की जानिब चल दिया तो अशमान परेशानी से इनके पीछे जाने लगा। नहीं अशमान, तुम यहीं रुकोगे, ये हम दोनों का मामला है, कोई भी मेरे बीच नहीं आएगा। इतना कहकर मुजाहिद वहाँ से चले गए तो फरीन बेगम भी अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब परेशानी इसे वहीं बैठ गए। मैं बाबा के पीछे जाता हूँ, और शमान ने फिर से कहा तो अम्मा भी ने इनकार में सर हिलाया। नहीं बेटा, फिक्र मत करो, यूसुफ इसे संभाल लेगा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं जानती हूँ यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये बात मुजाहिद को समझा लेगा। अम्मा भी की बात पर शमान ने परेशानी से इन्हें देखा। वो अपने बाप के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो बेबस था। कुछ देर के बाद अज़म उठकर वहाँ आया तो अम्मा भी इसे देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो कम से कम 8 घंटे सोया रहेगा, लेकिन वो तो 2 घंटों में उठ बैठा था। मैं घर जा रहा हूँ, अज़म ने संजीदगी से और दरवाजे की जानिब जाने लगा। अशमान भाई के साथ जाओ और आज रात इसके पास ही रुक जाना। अम्मा भी के ऊपर पर अशमान ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन तभी मुजाहिद का मुलाजिम भागता हुआ वापस आया था। अम्मा बेगम गदब हो गया। मुलाजिम की बात पर सबने परेशान इसे देखा। क्या हो गया खुर्शीद? अम्मा बी ने परेशानी से पूछा, जबकि दिल में बहुत कुछ होने की गवाही दे रहा था। चौधरी जी और मलिक जी ने एक दूसरे को गोली मार दी है। अम्मा बी दोनों को सांसें नहीं आ रहा। मुलाजिम की बात पर घर के हर फर्द पर एक पहाड़ टूट कर गिरा था। जब तक वो सब चौधरी की हवेली पहुंचे, मुजाहिद और यूसुफ दोनों ही दम तोड़ चुके थे। एक रहो इन्हें मुजाहिद की, जबकि दूसरा यूसुफ के हाथ में मिला था। एक गोली यूसुफ के दिल के मुकाम पर लगी थी, जबकि मुजाहिद को गोली सर की पिछली जानिब मारी गई थी। पूरा गाँव इसी बात पर अफसुदा था कि दोस्ती की मिसाल वो दोनों दोस्त एक दूसरे की जान ले चुके थे। दोनों को ही गज़ल चौधरियों की हवेली में देखा गया था। दोनों को गुसल चौधरी की हवेली में दिया गया था। सुल्तान और शमान को तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका जहान उड़ गया हो, जबकि फरीन बेगम की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। सबसे बुरी हालत अगर किसी की थी तो अज़म की थी, जो अपनी माँ को खोने के बाद अब अपने बाप को खो चुका था। खुर्शीद अशमान की आवाज़ पर खुशी ने 18 साल लड़के को देखा, जो ऐसा लग रहा था छोटी सी उम्र में ही न जाने कितना बड़ा हो गया। बाबा का जनाजा उठाने की तैयारी करो, हम इन्हें अपनी हवेली लेके जा रहे हैं। इनका जनाजा इनके कातिल के हाथ से नहीं उठेगा। अशमान की बात पर अज़म ने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा।
अशमान ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई, मत बुलाओ मुझे भाई। अशमान के चिल्लाने पर सब आदमियों ने इसे देखा। तुम्हारे बाप ने पहले मेरे फुप्पो को मारा, फिर मेरे बाबा की भी जान ले ली। मुझे तुम भी अपने बाप जैसे घटिया लग रहे हो। सुना तुमने? अशमान के चिल्लाने पे अम्मा बी ने हैरत से देखा, जो अशमान का चिल्लाना सुनकर बाहर आई थी। अशमान क्या कह रहे हो, बड़ा भाई है तुम्हारा। अम्मा बी ने अशमान को समझाना चाहा, नहीं ये मेरा बड़ा भाई अम्मा बी, ये बस मेरे लिए मेरे बाबा की कातिल की औलाद है और कुछ नहीं। अशमान ने गुस्से से नम होती आंखों से अज़म को देखा था। मेरा बस चले तो इस घटिया बाप को मैं जिंदा करके एक बार फिर से मारूं जिसने मेरे बाबा को। अशमान के मुंह पर पड़ने वाले शोरदार मुक्के ने इसके अल्फाज मुंह में ही रोक दिए। बस अरशमान बहुत हो गया, अगर मेरे बाबा के खिलाफ एक और लफ्ज़ लिखा तो तुमने तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो उन्होंने मेरी माँ को मारा ना ही मामू को। बस तुम में इतनी अकल नहीं कि तुम ये बात समझ सको। अज़म ने गुस्से से कहा, जबकि आन दोनों को गुस्सा अम्मी को परेशान कर रहा था। बाबा का जनाजा उठाओ खुर्शीद, हम एक पल भी यहाँ नहीं रहने वाले। अरशमान ने हुक्म दिया। सबको और सबको देखा। हाँ चले जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम जैसे घटिया सोच वाला आदमी अपने घर में नहीं चाहिए, और ले जाओ मेरे बाप के कातिल को यहाँ से। अज़म के गुस्से से कहने पर अरशमान की आंखों में नफरत उतरी। आज के बाद इस हवेली से या यहाँ के किसी फर्द से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी ने इनसे ताल्लुक रखना चाहा तो इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अरशमान ने सबकी जानिब देखते हुए रोब से कहा, इसलिए सोच लो, जिसको मेरे साथ आना है अभी चलो। अशमान ने इतना कहकर सबकी जानिब देखा तो फरीन ने सुल्तान का हाथ पकड़ा और उठकर अशमान के पीछे आकर खड़ी हो गई। अशमान ने सवालिया नजर से अम्मी अबी को देखा। अशमान सोच ले अम्मा भी, अगर अभी यहाँ रुकी तो इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अशमान की बात पर दो आंसू अम्मा बी की आंखों से निकले और उन्होंने आंसू से तरह आंखों से अपने बेटे की लाश को देखा और अशमान के पास जाकर खड़ी हो गई। चची अशमान के सवालिया अंदाज पर शमा ने रहम तलब निगाहों से अशमान को देखा, फिर अपने भाई की लाश को देखा। इस शख्स से किसी का कोई ताल्लुक होने का मतलब है कि मेरा ताल्लुक इससे नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। अशमान कहकर तो शमा से रहा था, लेकिन इसकी नज़र शमा से सहम कर लिपटी आन पड़ती। शमा ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा और फिर फूट फूट कर रोते हुए अपने हाथ अज़म के सामने जोड़ दिए। फुप्पो अज़म की लाचारगी इनके दिल को छलनी कर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल चुना और अशमान के पास आ गई। चलो खुर्शीद, अब यहाँ किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इतना कहकर अशमान वहाँ से चला गया और खुर्शीद ने आदमियों के साथ मिलकर मुजाहिद की मैयत को वहाँ से उठा कर ले गया, जबकि किसी को अज़म का ख्याल नहीं आया। वो वहाँ बिल्कुल तन्हा हो गया था, बिल्कुल अकेला। शाहिद को मुजाहिद और समन की मौत की खबर मिली तो पहली फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान आ गए, लेकिन यहाँ आकर जब इन्हें पूरी बात पता चली तो वो गुस्से से बेकाबू होते शमा के पास आए और इन्हें बुरी तरह से मारने लगे। शायद ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? इस सब में शमा का क्या कसूर है? अम्मा बी ने शमा के आगे होकर इन्हें अपने पीछे छिपाते हुए पूछा। इसका कसूर ये कि अम्मा बी की ये इस घटिया शख्सी बहन है जिसने मुझसे मेरे बहन भाई छीने, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद ने आगे होकर फिर से शमा को पकड़ना चाहा। चाचू अशमान के चिल्लाने पर शायद ने हैरत से पलट कर अशमान को देखा, जो अपने बाप की मौत के बाद से बहुत बड़ा लगने लगा था। चाची ने इस घर को चुना, यहाँ के लोगों को चुना, अब इस घर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो सजा की हकदार नहीं। जिससे अपने घटिया बाप को चुना, इससे हर ताल्लुक तोड़ दिया गया है। अब वो बस मुल्कों का दुश्मन है और कुछ नहीं। अशमान ने संजीदगी से कहा तो अम्मा बी ने बेबसी अपना सर झुका गई। अपनी नवासी से हुई ज्यादती पर इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। नहीं अशमान, इसका इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं, इस घटिया खानदान से जुड़े किसी भी शख्स का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, और जो ताल्लुक है मैं आज ख़त्म कर दूंगा। शाहिद की बात पर शमा ने सहम कर अपने शौहर को देखा। शमा चौधरी, मैं शाहिद मलिक अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इतना कहकर शायद वहाँ से चलेगा और शमा का पूरा जहाँ इनके तीन बोल से बिखर गया। वो मुर्दा हालत में वहाँ खड़ी थी। अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस शख्स पे लगाने के बाद आज इसने इन्हें ये सिला दिया था, इन्हें इस गुनाह की सज़ा दी थी जो इनका था ही नहीं। इतने गम अपनी जान पे झेलने के बाद ये गम शमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ था। एक पल लगा था इनका धड़कता दिल बंद हुआ, वो ज़मीन बोस हो गई। अम्मा भी ने रोते हुए शमा को उठाना चाहा, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो तो इनके लिए उम्मीद की हर किरण मिटाती हुई वहाँ चली गई थी। आज इनकी हवेली से तीसरा जनाजा उठने को तैयार था। अगर किसी को संभालना नामुमकिन हो रहा था तो वो आन थी, जो अपनी माँ के बिछड़ने का गम झेल नहीं पा रही थी। अज़म अपनी फूफो के जनाजे के लिए आया, लेकिन अशमान ने इसे हवेली में दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं दी। इसके मुताबिक शमा चौधरी की बेटी ने मुल्कों की बहू थी और अज़म इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस दिन अज़म के दिल में अशमान के लिए एक नफरत पैदा की गई थी, एक ऐसी लाजवाल नफरत जिसमें इसने खुद से कसम खाई थी कि वह अशमान को वैसे ही तना करेगा जैसे अशमान ने इसे किया।